Friends, we are into this next lecture of the hydrology, wherein today we will try to understand various some parameters related, which will be helpful for us in our future study of hydrology. That is the catchment area, then the effects of certain hydrological parameters like the wind, temperature, humidity, and atmospheric pressure, and also we will see the part of the surrounding earth that we call as atmosphere, which part of the earth relates to the hydrological parameters और hydrological phenomena. ये हम वन बाय वन पढ़ते जाते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट पहला जो है वो आज हम पढ़ने वाले हैं कैचमेंट एरिया. ठीक है, ये कैचमेंट एरिया कंसेप्ट is not only useful to you at this juncture of hydrology, but it will be useful to you everywhere in future in the subject like irrigation engineering, hydraulics, etc. So the it's very easy, but please try to understand. We all know that the river or any stream, or again I will use the third word, that is the nala, छोटे से नाले, stream या नदी, इसको पानी आता है, it receives the water from the precipitation or the rainfall. But that river not only receives, listen very carefully, that river or the stream not only receives the water directly falling into that stream from the rains or from the precipitation, but it also receives the water which is falling in an area which is adjacent to the stream. कोई भी नदी या कोई भी नाला इसमें पानी रहता है बरसात का. ये पानी कहां से आता है? ये पानी बरसात का, जब बरसात नदी में गिरता है पानी उससे तो आता ही है, लेकिन उससे उतना नहीं आता कि जितना पानी उसके आजू बाजू के एरिया में गिरता है बरसात का. एंड दैट एरिया which supplies the water to the stream. Listen, that the area which supplies the water to the stream is called as the catchment area of that stream. Every stream, every river has got different catchment areas. ठीक है? So area of the land draining into the stream or water course at a given location is called as the catchment area. Draining means supplying the water, is called as the catchment area. It is also called as the drainage area. It is also called as drainage basin, and very importantly it is also called as the watershed. है ना, मैं और आगे में समझा देता हूं आपको, सम विद द हेल्प ऑफ द सर्टेन स्केचेस और द इमेजेस. तो ये तीन चार वर्ड आपको ध्यान में रखना है, धीरे धीरे लिख, आपके नोटबुक में भी लिखा तो बहुत अच्छा है. कैचमेंट एरिया, ड्रेनेज बेसिन या वाटरशेड, है ना. हम बहुत बार वाटरशेड डेवलपमेंट करके कहीं ना कहीं तो भी पढ़ते रहते हैं. तो ठीक है, तो एखादे स्ट्रीम को जो एरिया से पानी सप्लाई होता है, बरसात का पानी, है ना, बारिश गिरती है किसी एरिया के ऊपर में, हमारे इतना बड़ा अर्थ का ये है या इतना बड़ा हमारा एरिया रहता है, बारिश गिरती है, बहुत बड़े एरिया में रेनफॉल होता है, लेकिन फ्रॉम ए पर्टिकुलर एरिया दैट स्ट्रीम रिसीव्स द वाटर, दैट प्रेसिपिटेशन वाटर इन द फॉर्म ऑफ रन ऑफ. ठीक है, रन ऑफ अभी हमने पढ़ा, सरफेस रन ऑफ. तो वो सरफेस रन ऑफ से जो एरिया से पानी ड्रेन होके आता है वो स्ट्रीम में, उसे कैचमेंट एरिया करके बोलते हैं. ठीक है, अभी और स्केचेस हम आगे देखेंगे तो और ध्यान में आएगा. या आपको अभी विजुअलाइज करते जाना है कि भाई नदी को पानी कहां से आता है. ए कैचमेंट एरिया इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स नेबरिंग एरिया, यानी दो कैचमेंट एरिया एक में से सपोर्ट होते हैं. टोपोग्राफी, अभी थोड़ी टोपोग्राफी या जियोग्राफी आंखों के सामने लाना है. द टू कैचमेंट एरियाज आर सेपरेटेड फ्रॉम इट्स नेबरिंग और द एडजेसेंट एरिया बाय द रीज. है ना, आपने कहीं सर्वे में जरूर पढ़ा होगा, कंटूर्स पढ़े होंगे, कंटूर्स, और बाद में वो कंटूर में वैली के कंटूर, नदी के कंटूर, रीच के कंटूर, है ना. पहाड़ी के ऊपर में ऐसा पोर्शन एक रहता है जिसको हम रीच करके बोलते हैं,
अभी थोड़ा सा मुझे हिंदी मराठी वर्ड एकदम याद नहीं आ रहा है, उसको रीच करके, या पहाड़ी का ऊपर का पार्ट बोलते हैं, जिससे एक that ridge divides two valleys. On the right side of the ridge there is one valley, on the left side of the ridge there is another valley. That valleys are called as the catchment area, watershed, or the drainage area, or the drainage basin. ठीक है, therefore this is another thing to understand, that catchment area is separated from its another area adjacent or the neighboring area by the ridge called as the divide or the watershed. ठीक है, चलो अब ये इमेज से हम समझ लेते हैं और अच्छे से। ये आपको एक आपके स्क्रीन के ऊपर में, मोबाइल या आपके लैपटॉप के ऊपर में ये एक फोटोग्राफ या इमेज दिख रही होगी, और यहाँ से बीच में से आपको दिख रहा होगा कि एक नदी बह रही है। वन स्ट्रीम इज फ्लोइंग, वन रिवर इज फ्लोइंग, ठीक है। एंड यू कैन सी ऑन द बोथ साइड ऑफ दैट रिवर देयर आर टू हिली पोर्शंस, on the right side and on the left side there are two hilly portions or crest portion, जिसको crest भी बोलते हैं हम, crest। और दोनों के बीच में से जो दरी पोर्शन है, वैली पोर्शन है, उसमें से वो रिवर बह रही है। so the area between these two crest, between these two, these are called, also called as the ridges। ठीक है, अभी आपके सामने रीज यानी क्या है ये आपके अच्छे से ध्यान में आया होगा। तो द एरिया बिटवीन दीज टू रीजेस इज कॉल्ड एज द कैचमेंट एरिया, है ना। बारिश का पानी ये पहाड़ के ऊपर जब गिरेगा, या ये रिवर के ये इन बिटवीन द टू रीजेस और आउटसाइड द टू रीजेस ऑल्सो, ये रीच के और दूसरे साइड में भी बारिश गिरती है, तो बरसात का पानी ये रीच के, जैसे राइट साइड रीज है तो वहां से लेफ्ट साइड में बहते आएगा, और लेफ्ट साइड रीज है तो वहां से राइट साइड में बहते आएगा। और वैसे ये फ्रॉम बोथ दिस रीजेस द वाटर विल रीच टू दिस स्ट्रीम, है ना। बहुत बड़ा कैचमेंट एरिया होगा तो वो वहां से छोटे इसको मिलने वाले, जो ये नदी को मिलने वाले छोटे नाले हैं, छोटे और रिव्यूलेट्स है, तो उसमें से आते आते धीरे धीरे ये नदी को ये वाटर सप्लाई करेगा भाई, है ना। तो ये अभी धीरे धीरे हमें ये विजुअलाइज करना है कि, और जैसे अब हमें ऐसे बहुत बार अभी आगे में ऐसा ये होने वाला है, जरूरत पड़ने वाली है कि द कैचमेंट, बिकॉज वी आर कंस्ट्रक्टिंग अवर स्ट्रक्चर्स लाइक द ब्रिजेस, लाइक द डैम्स एक्सेट्रा, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स एट वेरियस लोकेशंस ऑन दैट स्ट्रीम, है ना। बहुत अलग अलग लोकेशन के ऊपर में हम यानी नदी में एखादे गांव से जा रहे हैं दूसरे गांव, तो नदी बीच में क्रॉस होती है तो वहां ब्रिज कंस्ट्रक्ट करेंगे, पानी की जहां जरूरत है वहां पे डैम कंस्ट्रक्ट करेंगे, है ना। ऐसे बहुत सारे एट वेरियस लोकेशंस वी विल बी गोइंग टू कंस्ट्रक्ट द स्ट्रक्चर्स इन फ्यूचर। सो एट दोज लोकेशंस जहां जहां है, जैसे आपको शायद दिख रहा होगा कि समझो ये ऑन द एक्सट्रीम, ऑन द डाउनस्ट्रीम पार्ट ऑफ द रिवर, जहां पे मेरा कर्सर यदि आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हमें समझो डैम कंस्ट्रक्ट करना है, तो इसके पीछे का पूरा जो एरिया है कैचमेंट एरिया, इसके पीछे का पूरा जो एरिया है, दैट इज द कैचमेंट एरिया फॉर दिस लोकेशन वेयर वी वांट टू कंस्ट्रक्ट द स्ट्रक्चर। ठीक है, कहीं तो भी अभी मेरा कर्सर अभी यहाँ पे अपस्ट्रीम में है, कहीं तो भी आपको शायद दिख रहा होगा, एक जरा मैं उसको हिला रहा हूं, स्ट्रीम करके लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे यदि मुझे एक आधा ब्रिज कंस्ट्रक्ट करना है, तो ये ब्रिज के लिए मुझे जो डिस्चार्ज वर्कआउट करना है एक, तो यहाँ का कैचमेंट एरिया इसके ऊपर का रहेगा, ऑन द अपस्ट्रीम पार्ट ऑफ दैट रिवर। प्लीज लिसन, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम ऑफ द रिवर। तो यहाँ का अपस्ट्रीम जो है दैट विल बी कैचमेंट एरिया फॉर दिस स्ट्रक्चर। द कैचमेंट एरिया फॉर द, जहां मैं अभी कर्सर है जहां डैम बोला था, उसका कैचमेंट एरिया इसके अपस्ट्रीम का होगा। ओके, सो धीरे धीरे समझते जाना है हमें ये कंसेप्ट समझना है। शायद आपको किसी ने सर्वे पढ़ाया होगा, तो टोपो शीट वगैरह पढ़ाया होगा सर्वे 1 में, तो उसमें उस पर से हम ये धीरे धीरे, ये तो 3D पिक्चर आपको बताया, बट विद द हेल्प ऑफ द टोपो शीट फ्रॉम द प्लान we should be able to find the catchment areas etc. ओके, ठीक है, हम आगे में और अच्छे से समझते हैं।
So watershed or the catchment area is the unit in which the hydrological cycle and its components can be analyzed. So watershed or the catchment area is the different at different location of the stream for a stream, and it is nothing but the water supplying area to the stream from the precipitation, from the rainfall. So देर इज वन वाटर बैलेंस इक्वेशन विल बी लर्निंग, लेकिन अभी आपको कैचमेंट एरिया समझ के आया होगा तो और अच्छी बात है. सो किसी भी लोकेशन के ऊपर में वाटर बैलेंस इक्वेशन एक रहता है, एक बहुत सिंपल है, मैथमेटिकल इक्वेशन है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है. लेकिन इनफ्लो, नदी का पानी जो इनफ्लो आता है उतना ही आउटफ्लो, और वहां पे एक आधा डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वहां पे दैट मच वाटर इज स्टोर्ड. ऐसा उसका सिंपल ही है, आगे में हम देखते हैं. The definition of the catchment area is, it is defined as the area that appears on the basis of topography, है ना, the area that appears on the basis of topography which contribute all the water that passes through a given cross section of the stream. A given cross section means at that particular location, है ना. So this is a simple बट वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ द वाटरशेड, है ना. आपको और समझने के लिए मैंने ये एक पहाड़ी का आपको ये बताया है. ये मेरा कर्सर आपको दिख रहा होगा, बीच में दो स्ट्रीम है. ये देयर आर टू स्ट्रीम्स, टू स्मॉल रिवर्स और द रिव्यूलेट्स यू कैन से, और रिवर्स. ये दोनों के बीच में एक आपको रीज दिख रहा होगा, दिस इज कॉल्ड एज द रीज. ठीक है. इसके लेफ्ट साइड में भी एक रीज है और राइट साइड में भी एक रीज है. ठीक है. तो जैसे राइट साइड की जो रिवर है, स्ट्रीम है, इसको जो पानी सप्लाई होगा, बरसात का जो पानी आएगा, वो ये बीच में की रीज और राइट साइड की रीज में से पानी ये नदी को आएगा. वैसे ही लेफ्ट साइड की जो रिवर है, वो लेफ्ट साइड की रिवर को एक्सट्रीम लेफ्ट साइड की रीज और सेंट्रल रीज, ये दोनों के ऊपर में जो बरसात का पानी आएगा वो यहाँ पे ये स्ट्रीम को आएगा. ओके. और ये स्ट्रीम जो है राइट और लेफ्ट आपको दोनों बताई है, बीच में पहाड़ी है जिसको रीज बोलते हैं, राइट साइड में भी रीज है, लेफ्ट साइड में भी रीज है. तो द कैचमेंट एरिया ऑफ द स्ट्रीम एट वेरियस लोकेशंस, जैसे कर्सर मेरा सबसे नीचे में है तो यहाँ पे कैचमेंट एरिया इसके पूरे पीछे का एरिया रहेगा. और मैं कहीं तो भी कर्सर अभी मेरा इधर है, इधर समझो रिवर है इसके और अपस्ट्रीम में. सो द कैचमेंट एरिया एट दिस क्रॉस सेक्शन और द लोकेशन will be upstream part of this location, upstream part between the ridges. The same is applied to the right side river. So what I mean to explain you must have got to some extent कुछ आपके, क्योंकि ये important concept है इसलिए मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर स्ट्रेस दिया. ये प्लान है एक, आपको अभी आगे में जो दिख रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर में, this is you can say satellite image. It is a satellite image in which you can see there are various rivers or the streams or the nalas are there. कुछ जो ऊपर में दिख रहे हैं, some hilly areas are there. From the plan you can, from the visualizing this plan, you can see various, you can understand various ridges now from this. यहां से आपको रीजेस दिखेगी, कहीं नदियां दिख रही है, दो नदियों का मिलन है, कहीं तो भी संगम जिसको बोलते हैं. ठीक है. तो ये यदि आप देख रहे हैं तो मैं आप आगे में आपको इसके वेरियस कैचमेंट एरियाज आई विल बी शोइंग यू. सो यू कैन सी दिस इज द कैचमेंट एरिया शोन बाय द रेड बाउंड्री ऑन द रीजेस एट दिस लोकेशन. जो सर्कल से बताया गया है, एक स्मॉल ब्लॉक और स्मॉल सर्कल ऑन द ब्लैक कलर जहां मेरा कर्सर है. ठीक है. तो एट दिस लोकेशन द कैचमेंट एरिया इज शोन बाय दिस रेड बाउंड्री. दिस रेड बाउंड्री एनक्लोजेस द रीजेस. ठीक है. तो इतने एरिया का पानी ये यहां तक आएगा जहां कर्सर है वहां पे. So this is the catchment area for this river at this location.
At upstream location the catchment area will be less. ठीक है, जैसे हम अपस्ट्रीम में जाते हैं तो कैचमेंट एरिया विल बी लेस, बिकॉज द वाटर बिटवीन दिस अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम पार्ट विल नॉट एंटर इनटू द रिवर, सिर्फ ऊपर का पानी आएगा. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज द कैचमेंट एरिया. अगेन वेरियस areas are shown here. You can see on the right side there are the blue boundaries are there. So again this is the catchment area for another stream. So these are called as the watershed or the catchment, and the red or the blue boundaries are called as the watershed divide. ठीक है, यानी इस पे से इस ये जो रेड है इसके बाहर में जो है it is the watershed divide for that outer streams and also for the inner streams, है ना. अभी हमने क्रॉस सेक्शन देखा, प्लान देखा, तो हमें कुछ ना कुछ तो समझ में आया. ये थोड़ा सा और एक क्रॉस सेक्शन देखते हैं उसी टाइप से, जैसे लेफ्ट साइड में एक स्ट्रीम है, राइट साइड में एक स्ट्रीम है, और इन बिटवीन ये रीज है, रीज है ना, इन बिटवीन रीज. So this is the, on the left side is the topographical watershed for the left side stream. On the right side it is the topographical watershed of the right side stream. इसके बीच में जो रीच के ऊपर बारिश का पानी है वो दोनों साइड में डिवाइड होगा. ठीक है, एक आधे बार यदि यहाँ पे रीच में परमिएबल सॉइल है, पानी अंदर परकोलेट होता है, तो वो जिस साइड में स्लोप, अंडरग्राउंड स्लोप है, उस हिसाब से वो स्ट्रीम को वो पानी सप्लाई करेगा, ऐसा इसमें बताया गया है. ठीक है, लेकिन हमारे को वही समझ लेना है एक बार, कैचमेंट एरिया कंसेप्ट. विद दिस लेट अस, देखिए फिर से आपको बताने के लिए मैंने और एक ये लगाया है, इमेज बताइए. ये जैसे दिस इज द कैचमेंट एरिया shown by the red dotted boundary of this particular stream. To this stream, main stream, there are a lot of the tributaries which are joining. ट्रिब्यूटरी बोलते हैं, एक बड़े नदी को छोटी छोटी नदियां आके मिलती है, बड़े खादे नाले को छोटे छोटे नाले आके मिलते हैं, है ना, पहाड़ी से निकलते हैं छोटे छोटे, उसको जिसको हम हमारे लोकल लैंग्वेज में उगम करके बोलते हैं, सोर्स, एक आधे नदी का उगम. दैट नदी और दैट स्ट्रीम स्टार्ट्स फ्रॉम दैट हिली एरिया, तो वो जो है वो अलग अलग मिलते हैं. दोज आर कॉल्ड एज द ट्रिब्यूटरीज. So various tributaries joins the main river, and the water supplied to all these tributaries etc. from the area is called as the watershed, catchment area, drainage basin. Okay, and the boundary is called as the watershed boundary. ठीक है, इसमें बहुत सारे और आपके हाइड्रोलॉजिकल पैरामीटर बताए हैं. रन ऑफ यानी इसमें से बहता हुआ पानी नीचे में जाएगा तो ग्राउंड वाटर फ्लो, सब सरफेस फ्लो, है ना, ये सब जाके कहीं तो भी लेक में या कहीं समंदर में जाके मिलता है. आगे में हम और पढ़ने वाले हैं. ये वाटरशेड जो है लेफ्ट साइड में प्लान में आपको बताया गया है. जनरली देयर आर टू shapes of the watershed are there. The catchment areas are generally of two shapes. That on the upper side, on the top, it is shown as the fan shaped, पंखे जैसा रहता है, पंजा, पंखा, इंग्लिश में उसको बोलते हैं फैन शेप्ड कैचमेंट एरिया, फैन शेप्ड कैचमेंट एरिया. On the bottom it is called as the FERN, fern, fern leaf shaped. फर्न करके एक झाड़ रहता है, वो झाड़ के जैसे पत्ते रहते हैं, उसको फर्न लीफ शेप करके बोलते हैं, है ना. अभी सिर्फ अभी हमें ध्यान में रखना है, इसका इंपॉर्टेंस है, आगे में हम पढ़ने वाले हैं. तो ऊपर का क्या बताया मैंने, फैन शेप्ड, पंखे जैसा गोल, बहुत स्प्रेड रहता है कैचमेंट एरिया. और एक ऐसा रहता है जो फर्न लीफ शेप्ड, FERN, फर्न, LEAF, लीफ शेप, डी शेप्ड. इसका डिस्चार्ज के ऊपर, नदी में से जो रन ऑफ होने वाला है बारिश के बाद में, जिसको हम डिस्चार्ज या रन ऑफ, है ना, अभी मैं कुछ कुछ वर्ड यूज करूंगा तो आपको उसके साथ में कॉन्वर्सेंट होना है. रन ऑफ, जिसको हम सरफेस रन ऑफ बोलते हैं, उसको ही हम नदी में से बहता हुआ पानी, जिसको हम डिस्चार्ज थ्रू द रिवर बोलेंगे. सो दिस विल डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द कैचमेंट एरिया.
ओके, द फैन शेप्ड एंड द फर्न शेप्ड, ये कैसा है हम धीरे धीरे समझते जाते हैं, है ना। आपको अब विजुअलाइज करना है। हम इंजीनियर कैसे है कि एखादा ड्राइंग देख के, जैसा बिल्डिंग ड्राइंग है, एखादा रिइंफोर्समेंट ड्राइंग है, तो हम उससे विजुअलाइज करते हैं एखाद्या आर्टिस्ट जैसा कि ये बिल्डिंग कैसे दिखेगी। तो वैसे ही ये प्लान ऑफ दिस कैचमेंट एरिया यू हैव टू विजुअलाइज स्लोली। ठीक है, ये राइट साइड में एक ग्राफ है जिसको हाइड्रोग्राफ करके बोलते हैं। आगे में हम पढ़ते जाएंगे। दिस इज द ग्राफ बिटवीन एक्स एक्सिस के ऊपर में उसका ड्यूरेशन रहता है टाइम, और वाई एक्सिस के ऊपर में रन ऑफ रहता है डिस्चार्ज। ठीक है, तो वो जैसे आपको दिखेगा फैन शेप्ड है, सो दिस ग्राफ इज यूनिफॉर्म। और यदि फर्न शेप्ड है तो इसका पीक जो है मैक्सिमम डिस्चार्ज, ये फर्न शेप में कम रहता है। दीज आर द टू थिंग्स वी विल अंडरस्टैंड स्लोली। एक एकदम 2 मिनट के लिए ये एक वाटर बजट इक्वेशन है। विद द नॉलेज ऑफ द catchment area, with the knowledge of the runoff, we will move further. For a given catchment, in an interval of time dt, डेल्टा टी, किसी कैचमेंट के लिए, कैचमेंट एरिया आपको अभी ध्यान में आ गया, और फॉर ए इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी यानी फॉर 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 1 डे, दैट इज द डेल्टा टी टाइम। The continuity equation for water in its various phases is given as, जैसे किसी कैचमेंट एरिया में, आप सबको मालूम है कैचमेंट एरिया अभी आपके ध्यान में होगा, is always related to a specific location of the river। उसको हमने क्रॉस सेक्शन करके बोला, फॉर ए पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो फॉर ए पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन और एट पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन, for a specific catchment area, the runoff, that is the water flowing through that stream due to rainfall, that is called as the mass inflow। पानी नदी में वहां पे आने वाला, माइनस मास आउटफ्लो एट दैट रिवर, पानी बाहर जाने वाला एट दैट क्रॉस सेक्शन, द वाटर गोइंग आउटसाइड, द वाटर कमिंग आउटसाइड माइनस वाटर गोइंग आउटसाइड इज इक्वल टू चेंज इन मास स्टोरेज। यानी दोनों में का जो फर्क है वो है, वहां पे यदि हम एखादा डैम बनाते हैं या पानी रोक के रखते हैं, तो वो दैट इज दैट मच क्वांटिटी ऑफ वाटर, दैट इज द चेंज इन मास यानी वॉल्यूम ऑफ द वाटर स्टोरेज। बहुत इजी है, कोई तकलीफ देने वाला काम नहीं। इफ डेंसिटी ऑफ द इनफ्लो आउटफ्लो एंड स्टोरेज आर द सेम, then the Vi minus Vo is equal to delta S. Vi is inflow, V0 is outflow and delta S is change in water volume। है ना। एखादे बार हम वो नदी में, वो जगह के ऊपर में एखादा छोटा सा बंधारा बांधते हैं, एखादा डैम बांधते हैं, एखादा कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो नेचुरली जो अंदर आने वाला पानी है एट दैट लोकेशन, मास इनफ्लो will be more, some water is obstructed into that bandhara, into that plug or into that dam, that water obstructed or stored is that change in mass storage। और जो ज्यादा का पानी है वो बंधारे के ऊपर से बह के जाएगा, that is the mass outflow। so mass inflow minus mass outflow is change in mass storage। बस एक सिंपल अभी के लिए ये ध्यान में रखना है, this is called as the water budget equation। इसी को थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में बताया है जो हम अभी हाइड्रोलॉजिक साइकिल में पढ़े हैं। वही इक्वेशन P माइनस आर माइनस जी माइनस ई माइनस टी, क्या है ये पी आर जी टी हम देखते हैं, इज इक्वल टू डेल्टा एस। अगेन डेल्टा एस इज दैट चेंज इन द मास और द चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन स्टोरेज। व्हाट इज P? P इज द क्वांटिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल। R इज सरफेस रन ऑफ, P माइनस आर, है ना। हम इनफ्लो यानी जितना पानी अंदर आने वाला है वो नदी में, वो क्रॉस सेक्शन में या वो जगह पे एट दैट लोकेशन, है ना। द लेंथ ऑफ द रिवर इज क्वाइट लॉन्ग, बट एट डिफरेंट लोकेशंस देयर विल बी डिफरेंट कैचमेंट एरिया। So let us say for at a particular cross section of the river at particular location, the precipitation that has occurred on the upstream part of that catchment area, precipitation rainfall, minus runoff, वो नदी में से बहता हुआ पानी, माइनस जी
दैट इज नेट ग्राउंड वाटर फ्लो आउट ऑफ द कैचमेंट. हमने इनफिल्ट्रेशन पढ़ा. ड्यू टू दैट इनफिल्ट्रेशन सम वाटर विल percolate or infiltrate into the ground. 100% of the precipitation will not be converted into the runoff. है ना, धीरे धीरे समझती जाएंगे. सबका सब जो बरसात का पानी आता है वो पूरा के पूरा नदी में से नहीं बहेगा. कुछ पानी जमीन के अंदर जाएगा, जिसको हमने जी करके बोला. सम क्वांटिटी ऑफ वाटर विल परकोलेट इनटू द ग्राउंड. सम मे गेट इवेपोरेटेड. कुछ पानी की वाप भी हो जाएगी, इवेपोरेशन होगा, जिसको हमने ई करके बोला है. और सम वाटर विल बी ट्रांसपायर्ड थ्रू द प्लांट लीव्स. कुछ जो प्लांट के रूट्स है वो एब्जॉर्ब करेंगे और उसमें से प्लांट के स्टेम्स, जिसको बूंदे करके बोलते हैं झाड़ के, उसमें से वो जाते जाते प्लांट के लीव्स तक जाएगा, पत्ते तक. और प्लांट के पत्ते में से कुछ पानी हवा में इवेपोरेट होगा, विच इज कॉल्ड एज द ट्रांसपीरेशन. So that precipitation minus the runoff minus the gravitational or the groundwater flow minus evaporation quantity of water minus transpiration quantity of water will be delta S. That is the water stored at that location. Okay. Ultimately, we as a civil engineer are interested in constructing the hydraulic structures like the reservoir, dam, bridges, है ना, कलवर्ट्स, है ना. मैं बहुत लिस्ट आपको पढ़ा हूं. तो व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट इज एंटरिंग एट दैट लोकेशन वेयर वी वांट टू कंस्ट्रक्ट द स्ट्रक्चर. दैट क्वांटिटी इज डेल्टा एस. Because for that quantity of water, for that amount of the quantity of water, we have to design the structure. है ना, जितना पानी आने वाला है उस हिसाब से हम वहां पे स्ट्रक्चर बांधेंगे. कम आता होगा तो कोई बड़ा स्ट्रक्चर बांध के कोई फायदा नहीं है. ज्यादा आता होगा बहुत पानी नदी को और हमने छोटा सा डैम बनाया तो वो भी कोई फायदे की चीज नहीं है ना. तो इसलिए वी हैव टू. अभी धीरे धीरे सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस आपके ध्यान में आएगा कि हाउ मच डीप द सब्जेक्ट इज एंड हाउ मच इंटरेस्टिंग इट इज. So this is therefore a simple and very interesting water budget equation. कोई ज्यादा दिमाग को तकलीफ नहीं देना, ऐसे ही ध्यान में रखना. The above equation is called as the water budget equation for a catchment. है ना, कैचमेंट कंसेप्ट यदि आपके ध्यान में आया होगा अभी धीरे धीरे, तो यू विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस वाटर बजट इक्वेशन. ठीक है, अभी हम इंपॉर्टेंट पार्ट्स के ऊपर में जाते हैं. लास्ट पार्ट ऑफ आवर यूनिट ऑफ दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस यूनिट, that is the components of the hydrological cycle and some important components like the wind etc. ठीक है, ये एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं. components of hydrologic cycle: first is the precipitation, second is the evapotranspiration. है ना, जमीन के ऊपर में बरसात का पानी गिरने के बाद में कुछ पानी ये हवा में जाता है, इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन. ये स्केच भी आप अच्छे से ध्यान में रख सकते हैं. कुछ पानी some water percolates into the ground, that is called as the infiltration. Between precipitation and infiltration, some in between water is intercepted. Your voice is breaking, sir.
सर मग. हाँ, क्या ब्रेक कुछ ये आ गया था, क्या ब्रेक आ गया था? Sir, you were disconnected, sir. अच्छा अच्छा, अभी कनेक्टेड, अभी हो रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. अभी clear है sir कितने आवाज. कितने देर से डिस्कनेक्ट हो गए थे? Sir, तकरीबन 3 से 4 मिनट. ठीक है ठीक है ठीक. Let us continue further. We are into this evolution of the hydrology. मुझे लगता है आपको दिख भी रही होगी स्क्रीन. Sir, screen is not presenting, sir. ठीक है ठीक है ठीक है. Due to maybe network problem on my location, I would have been disconnected. Okay, let us continue. So we were into this history of hydrology. So since so many thousand centuries, we are aware about the hydrology, because water being the important necessity of the various cultures. So whenever monsoon takes place, etc., for Indians it is there. इन द वैदिक लिटरेचर, हमारे जो वेद है, वेदों में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है कि जमीन के नीचे पानी कैसा अवेलेबल रहे होता है, उसकी कैसे वो सर्च करना चाहिए. ड्यूरिंग 3000 बिफोर क्राइस्ट, ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट थ्रू वेल्स वाज नोन टू द पीपल ऑफ आवर इंडस वैल्यू. सिंधु संस्कृति जिसको बोलते हैं, उन सबको मालूम था. और वो हमें मोहनजोदारो और हड़प्पा वगैरह ये जो है, इसके खुदाई में इसकी बहुत अच्छे से है ना. अभी इसके ऊपर मैंने ज्यादा समय देना अच्छी बात नहीं है, लेकिन इसके ऊपर बहुत अच्छा उनके पास में पानी की अवेलेबिलिटी एंड यूज ऑफ दैट वाटर इन दो सिटीज, द वाटर पाइपलाइंस, द वाटर ड्रेनेज सिस्टम एक्सेट्रा वाज देयर, द बाथ रूम्स वेयर देयर एक्सेट्रा. सो दे आर अवेयर अबाउट द वाटर. So there are various quotations very in our Vedic or Hindu scriptures. जैसे हमारे कहीं अर्थशास्त्र जो है चाणक्य का 300 बिफोर क्राइस्ट, इसमें है वराह मिहिर का जो है एडी 505 एंड 587. सो उसमें भी है बृहत संहिता करके, बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें तो बिल्कुल दिस रिलेट्स टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द रेन गेजेस, विंड वेन्स एंड प्रेडिक्शन प्रोसीजर्स फॉर द रेनफॉल, है ना. बारिश कब आने वाली है, कैसे है वगैरह, ये सब है. इजिप्शियंस में भी जो है, इजिप्शियन कल्चर, उसमें भी द नॉलेज ऑफ द हाइड्रोलॉजी इज देयर बिफोर क्राइस्ट 1800.
So it is known to the all over the world, from India, Egypt, Europe, America, etc., before and after the Christ. But nowadays, means the modern day hydrology has developed, and that has been written in the book called as the Handbook of Applied Hydrology, that has been written by Mr. Wen T. Chow. ठीक है? He has written in 1964, Wen T. Chow, and wherein he has described all these hydrological periods into the 8 parts. That is 1400 AD, 1400 to 1600, for 16 to 17, 17 to 18, and so on, and 1950 onwards. भारत में जो है all over means 1900 to 1930, etc., etc. And he has given that period of speculation, observation, measurement, experimentation, modernization, empiricism, rationalization and theorization, etc. एंड धीरे धीरे यानी हम इसके एक्यूरेसी की तरफ आते गए. जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे भारत में है ना, कभी भी चांस आया एक आधे बार, हरिद्वार के पास में रूरकी करके गांव है, रूरकी. आप सबको मालूम ही है, मुझे मालूम है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT रूरकी भी है वहां पे. बट एज इन द इम्पोर्टेंस ऑफ द इरिगेशन, बिकॉज द अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर इज मोर इन नॉर्दर्न इंडिया. हमारा जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत में हिमालय से निकलती हुई नदियां है, तो 12 महीने पेरिनियल रिवर्स आर देयर. तो इसलिए वहां पे पहले यानी ब्रिटिशों के जमाने से, बिफोर अवर इंडिपेंडेंस, जिसको हम इंपीरिसिज्म करके बोलते हैं, यानी अंग्रेजों के जमाने में, तो तब से इरिगेशन का इंपॉर्टेंस, क्योंकि पानी उधर ज्यादा है तो उधर ज्यादा उसका ये हुआ. तो जो भी अंग्रेज बाहर से आए, तो वहां पे हाइड्रोलॉजी एंड आवर इरिगेशन हैज डेवलप्ड, and they have constituted an institute at Roorkee called as the National Institute of Hydrology. हमारे भारत में जस्ट फिर से आपके जनरल नॉलेज और एक पार्ट ऑफ द सिलेबस. तो यहाँ पे है, कभी गए तो जरूर जाइए. मैं गया हूँ. और ये जो हम आगे में पढ़ने वाले हैं, या कहीं तो भी आपने पढ़े होंगे बहुत सारे नेम्स ऑफ सम हाइड्रोलॉजिस्ट, हाइड्रोलिक्स और द इंजीनियर्स लाइक द बीनी, Barlow, Beal, Whiting, Strange formula, Rius formula, Deacon's formula, English, Lacey's formula. हमारे इंडियन भी कुछ थे, नवाब जंग बहादुर, कंवर सिंह, कुछ खोसला करके है, बहुत सारे हाइड्रोलॉजी और इन्होंने काम किया है इरिगेशन. तो उसका ज्यादा पढ़ाई इधर हुई है. ठीक है? तो यहाँ पे हम ये हिस्ट्री को विराम देते हैं. Application in engineering, we know that the hydrology is important for the storage structures, flood calculations. Flood पता लगा तो हम flood से बचना भी जान सकते हैं. So enable safe disposal of the flood, minimum flow and quantity of flow available at various seasons, interaction of the flood wave, hydraulic structures like the levees, reservoirs, barrages and bridges. ऐसे बहुत सारे हैं. ओवर टॉपिंग एंड कॉन्सिक्वेंट फेल्यूर ऑफ द अर्दन डैम, यानी हमें क्वांटिटी ऑफ द वाटर और रन ऑफ थ्रू द रिवर यदि पता चला, तो हम जो धरण बनाने वाले हैं उसको धरण की कैपेसिटी, इनएडिक्वेट की एडिक्वेट, फेल्यूर ऑफ द ब्रिजेस, कलवर्ट्स, ये अवॉइड कर सकते हैं. इनएबिलिटी ऑफ लार्ज रिजर्वायर टू फिल अप विथ वाटर. सो ऑल दिस कैन बी अवॉइडेड, failures, etc., and positive things can be achieved. Sufficient quantity of the water, storage reservoirs, bridges, etc., by the knowledge of this hydrology. ठीक है? These are the various applications. The remaining part we will see in our next or tomorrow's lecture. That is the of the environment atmosphere, wherein the hydrological phenomena like the precipitation, etc., takes place. And then we will see the importance of the wind, atmospheric pressure, temperature, etc. ठीक है? ह्यूमिडिटी वगैरह ये हम कल के लेक्चर में देखेंगे, और ये आधा यूनिट खत्म करेंगे वहां पे.
ठीक है, टुडे वी विल स्टॉप हियर.